So when we say assessment, one can look into that when we provide instruction, we plan for instruction, where we try to find out what would be the learning outcomes, how the task or the topic, skill, they can be broken down into its constituent parts. That is task analysis, what instructional strategies will be used, how the student's performance will be assessed, and what kind of classroom environment, classroom management will be taken care of, how the students will be motivated or how the motivation will be aroused among the students. That's a part where you prepare a plan for instruction. After the instruction has been planned, then we go for delivering the instruction in theory or in laboratory, in the classrooms, in the labs, or we take the students for the field work. This is actual implementation of the plan for instruction. And finally, assessment forms an integral part of teaching learning process because, as you rightly said, without assessment, we cannot find out to what extent the learning outcomes have been attained, to what extent the students have understood what has been taught, whether the same intentions have been understood or not. In addition to that, there are a number of other purposes which can be served by the assessment. NEP, that is National Education Policy 2020, also made certain significant observations and recommended for change in assessment procedures. The very first thing you can see is the assessment procedures which are being followed at present. Their whole focus is on the lower level abilities of remembering and understanding. Many studies have been carried out in the field of technical education as well as general education, where we come to the conclusion that 80 to 85% of the questions, they only test or assess the remembering and understanding level of the learner. Most of the questions, they are only catering to defining, stating laws, explaining the theories, differentiating, comparing, or calculating, applying the learned formula in a given situation, not a new situation. So it is mostly restricted to remembering and understanding. So NEP also said that we are not focusing on the higher level abilities of analysis, evaluation, and creation. Whereas we are also not focusing on learning outcomes because technical education has started following the accreditation process and we had gone in for outcome based education, but general education per se, there was not direct linking to the learning outcomes. Then it also said that in view of the changes which have taken place in the environment, there is a need to bring change or transformation in curriculum as well as pedagogy to make it more relevant to the context, and thereby there is need to change the assessment procedures. Again, you will agree with me that the system in vogue is dominated by the written test. मिड सेमेस्टर टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, क्विजेज हैं, देन यू हैव एंड टर्म टेस्ट है, असाइनमेंट है, वो भी सब राइटिंग में चल रहा है, बट मोर एम्फोसिस इज ऑन द written test as far as theory is concerned, and we do not utilize the various procedures which are available. So another recommendation of the national education policy is that we must shift our focus from norm reference testing to criterion based grading. Criterion means जैसे अगर आपने course outcome दिए हैं, out of the 5 course outcome, how many outcomes have been attained by the individual? Whether 3, whether 4, or all the 5 have been attained. That should be the criterion-based grading which should come into the higher education system rather than comparing one student's performance with the other. हम तो ये करते हैं ना, फर्स्ट कौन आ गया, सेकंड कौन आ गया, थर्ड कौन आ गया, and then it said that focus should be on improving the learning on the part of the learners.
rather than simply assessing the performance. तो हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? टू कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट. मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, during that process also I should assess my student performance and then take the correctives to improve upon their learning. देन उन्होंने कहा क्या? एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, and the faculty within the technical institution should be given freedom to use innovative methods of assessment that will take up. Then they have also said that as we see that the whole environment, there's a lot of technology integration, तो assessment procedures में भी integration होनी चाहिए. और जहाँ पे large group है, especially when you have a large number of students, so why not to integrate technology for quick feedback to the learner? So that's why they have also said educational technology forum need to be set up at the national level. And ये agencies शायद आप वाकिफ हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से आप वाकिफ हैं. देन यू हैव CBSE, यू आर ऑल फेमिलियर विद. इसी तरह they have started a center for PERC, and school boards are already there who are taking online examination. ये आपको पता ही है, नीट है, जीट है, NTA ही करता है एग्जामिनेशन. तो अभी वो कह रहे हैं कि in addition to the methods which are being used, we must go in for portfolios, rubrics, standardized assessment and assessment analytics. ये तो हमारी recommendations of the National Education Policy 2020. अब बात करेंगे कि जो मैंने आपसे पूछा था, why assessment? ये question I raised in the beginning. The very, you can see, ये हुआ नहीं हुआ, but you can see the very first thing is, जो हमारे पास learners आ रहे हैं, whether they are ready for the course which we are going to teach. अगर किसी चीज के prerequisite हैं, तो whether they possess those prerequisites or not. होता है ना, हम कहते हैं बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये चीजें आनी चाहिए एक इंजीनियर को. सो वी आर लुकिंग एट द कोर्स आई एम टीचिंग, व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, वो मैं असेसमेंट के थ्रू जान सकती हूँ. देन द सेकेंड थिंग यू कैन सी इज, जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये भी तो हो सकता है कि द स्टूडेंट ऑलरेडी हैज सम नॉलेज, some skills related to the content which I am going to teach. तो क्या उसके पास कोई prior knowledge है of the content I am likely to cover? ये भी हम देख सकते हैं. That will help me to start from the level where the students are. अगर उनको कोई चीज पहले से आती है, that can be skipped, और उस पर कम फोकस दिया जा सकता है. जो चीज नहीं आती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है. Then the third question which you can answer through assessment is that कितने हमारे जो learning outcomes हैं, whether the students are able to achieve those learning outcomes. आप लोगों ने ही बोला है, तो हम उसको देख सकते हैं. ये भी जान सकते हैं कि what are the strengths and weaknesses of the learners. किस चीज में बच्चा सीख गया है, उसको समझ आ गई है, कौन सी ऐसी चीज है where the student is not able to understand or grasp, that becomes the weakness. And then on the basis of identification of the weakness, we can take the correctives. We can guide the students to take the correctives so as to bridge the gap. और इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर if any student shows a poor performance in one of the areas, say numerical करता है, हर बार एंड में जाके कुछ ना कुछ गलती कर दी, दैट इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद द लर्नर. सब कुछ आता है, फॉर्मूला भी ठीक लिखेगा, इंसर्ट भी, बट कैलकुलेशन में गलती कर. नाउ दिस इज अ लर्निंग डिफिकल्टी ही इज एक्सपीरियंसिंग. If somebody is showing consistently poor performance in one of the subjects and he has a very specific difficulty, then that needs to be identified and that needs to be tackled. And finally we check at the end of the course kitne course outcomes usne achieve kar liye hain for grading purposes, and we assign grades to our learner. So one can see assessment
बहुत सारे पर्पसेस आपके सर्व करती है rather than simply grading the learner, right? And the aim, as far as national education policy is concerned, it has very clearly said the aim should not only be only to grade the learners but to improve upon the learning of the student. अब देखते हैं assessment होती क्या है. आपने कहा टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर, वही होता है. एंड इन चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर आप क्या करते हो? नहीं, आप क्या चीजें यूज करते हो टू असेस द परफॉर्मेंस? टेस्ट देते हैं, और क्या करते हो? असाइनमेंट्स देते हो, क्विजेस देते हो. सो दैट मीन्स यू आर यूजिंग wide variety of methods to assess the performance of the learner. So in nutshell, आप देखेंगे it is very simple to define the procedure of assessment. Assessment is use of any of the variety of procedures to obtain information about student performance. वो theory में भी हो सकती है, वो practicals में भी उसकी skill related हो सकती है, उसके attitude related हो सकती है, उसकी learning ability related हो सकती है, उसकी personality related हो सकती है, उसकी motivation related हो सकती है, उसकी team effectiveness हो सकती है, उसकी communication effectiveness. So any process or any method which you use to assess the performance of the learner is referred to as assessment. Clear? ठीक है, ज्यादा इसमें ना जाके. एंड जब आपने कहा assessment method, the most dominated method being used is the written test. और जो written test हैं, they can be open book examination or there can be closed book examination. हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं ज्यादा? क्लोज्ड बुक. ओपन बुक कब करना चाहिए? when we need to use open book examination. So in that case, आपकी जो problem है, there was no set answer available in the learning material, right? So open book examination is applicable only when there is no one right answer to the problem. There can be many right answers to the problem. Design करना है, create करना है, formulate करना है, प्लान करना है. उसमें क्या चाहिए आपको? कितना भी मटेरियल अवेलेबल है, बट द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स. It doesn't need application of simple one rule to find solution to the problem. There are number of rules which will be applicable, and you need to synthesize the knowledge which you have acquired and then apply that knowledge to solve the complex problem, right? तब आप open book examination use करेंगे. So open book does not mean that I put questions like define, compare, differentiate, apply the formula, but I need to design very high difficulty level questions where no direct answer is available in the resources which you have provided to the learner. And open book examination is suitable when we have to evaluate higher level abilities of application and higher than application, that is problem solving. Problem solving. Then comes your closed book examination. Closed book examination can further be classified into two: supply type as well as selection type. तो supply type में क्या आता है? Good. So, where the respondent is required to provide an answer, they are referred to as supply type questions. Otherwise, where the alternatives are available and the respondent has to select from the given alternatives, that is referred to as selection type. So, you have short answer, you have restricted essay type questions, you have extended essay type questions. Now, for example, short, when I say
define, this is a short answer type question. When I say differentiate between diesel and petrol engine, it's a short answer question. When I say restricted essay means that I have divided the question into various parts. तो मैं कहती हूँ define engine, differentiate between petrol and diesel engine. Then I say give at least 3 applications of each type of engine in the vehicles or automobiles. ठीक है, ये क्या हो गया, 3 parts हैं ABC. This is nothing but restricted essay type questions. Extended essay type questions is, I say explain the working of the parts, various parts of engine. मैंने ये कह दिया, मुझे 4 आते हैं, मैं 4 लिखती हूँ. Another student knows 8, वो 8 लिखता है. किसी को 10 आते हैं, वो 10 लिखता है. So how do we compare these? We cannot compare, right? So essay type questions leave much to the learner. But restricted essay gives you the cues whereby you can organize the answer under those headings, right? So, ye or fill in the blanks, they also come under supply type questions. If alternatives are not given, then comes your selection type. Selection type जो items हैं, उसमें आपके true false, multiple choice questions, matching type questions, and assertion reasoning type question. A is to B is proportional to C is to D. ठीक है, कहते हैं ना हम, तो that is the way. And then ये जो items हैं, they are amenable to test the learning outcomes from remembering to evaluating. Creating नहीं आएगा selection type में. Creating is available only in supply type questions. Creating नहीं आता उसमें, ठीक है. So written tests, they can test learning outcomes at various levels, and thereby, but the only thing is they are likely to, किसको फेवर करेंगे? The people who have good writing abilities. जो बच्चा बोल अच्छा सकता है उसको पेनलाइज कर देंगे, जो बच्चा परफॉर्म अच्छा कर सकता है उसको पेनलाइज कर सकते हैं. सो रिटन टेस्ट शुड बी गिवन वेटेज अकॉर्डिंगली. इट शुड नॉट बी दैट रिटन टेस्ट को ही तो हम ज्यादा वेटेज देते हैं, बाकी सब चीजों को कम वेटेज देते हैं. देन अनदर वन इज क्विजेस. क्विजेस हम यूज करते हैं. क्विजेस कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट. नॉर्मली यही होता है, ट्रू फॉल्स ले लेते हैं या शॉर्ट आंसर ले लेते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो क्विजेस, हाउ दे डिफर फ्रॉम रिटन टेस्ट? वहां भी तो सिलेक्शन टाइप आइटम हो सकती हैं. क्विजेस आर, या दे आर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. आप 20 मिनट का, 10 मिनट का, 30 मिनट का मैक्सिमम आप लेके चल सकते हैं क्लास में यूज करने के लिए. सो क्विजेस आर कैन बी मोर frequently used by the teacher in the classroom. Written tests are sparse, मतलब वो टाइम शेड्यूल बनाई जाती है कि कब होगा. एंड क्विजेस प्रोवाइड यू, जो पिछली क्लास में पढ़ा है वो आप असेस कर सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, राइट. फॉर्मेटिव, राइट. मैं अभी टाइप पे आई नहीं थी इसलिए मैं बोल नहीं रही थी. So they are more used for continuous and formative assessment of the learner. Then assignments. Assignments जो हैं वो हम स्टूडेंट्स को देते हैं अपने थ्रू आउट सेमेस्टर में, but their number is again 3 to 4, limited to one particular course. But you can test different levels of learning outcomes through assignments. ठीक है, रिमेम्बरिंग से लेके क्रिएटिंग तक आप टेस्ट कर सकते हैं. देन टर्म पेपर. सुना क्या होता है टर्म पेपर? Not the end term paper or the mid term paper. Term paper is a comprehensive paper written by the learner on the basis of knowledge acquired in a particular course. आपने कोर्स पढ़ा दिया, बच्चे को बोला ओके यू सिलेक्ट अ टॉपिक, नाउ यू सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर ऑन दैट टॉपिक by the end of the semester. वो theoretical है.
सो ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है. अगेन दिस विल बी application and higher than application, but starting from different levels of learning. Project work, you all understand. It involves application of the learned knowledge. It involves application. जो मैंने सीख लिया है उसको मैं अप्लाई करती हूँ, right? And we try to find a solution to some problem, or we try to assemble something, we try to create something out of the project. कुछ नया भी बना सकते हैं, but this involves application of the learned knowledge. And project work helps you in assessing what application, higher than application, problem solving be. It also helps you to assess the creativity on the part, communication skills जी. कॉग्निटिव तो हो गया आपका, एप्लीकेशन एंड हायर देन एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी एबिलिटीज आप कहाँ टेस्ट कर सकते हैं? थ्रू द प्रोजेक्ट वर्क, थ्रू द प्रोजेक्ट वर्क. देन सिचुएशनल टेस्ट. एनीबडी हु हैज एन आइडिया? नॉट केस. आर्मी में कोई जाता है डिफेंस में, हाँ, सिचुएशनल टेस्ट. जैसे बार्ब्ड वायर के नीचे से निकलना है, हाइट को स्केल करना है, राइट? और ऊपर से पैराशूट जंपिंग कराते हैं फॉर द एयरफोर्स पीपल, राइट? वो क्या है? दीज आर ऑल situational tests. So we can think of put a learner in a given situation and test his ability. तो जैसे आपने टीम वर्क का, there is a task, there is a treasure hunt, and there are 4 members. ये क्या है? This is a situational test by which you judge the team building capability of the people, right? So there are different types of tests which can be used for testing effective domain learning outcomes on the part of the learner. Then comes rubric. Rubric तो सुना है? क्या होते हैं? Tabular form, scoring, pass. It's a scoring procedure which enlists the criteria for assessing the performance. It also enlists the rating on which the behavior will be rated, and it also gives the description of the behavior for the different points of rating. Excellent किसको कहना है, वेरी गुड किसको कहना है, गुड किसको कहना है, सेटिस्फैक्ट्री किसको कहना है, पुअर किसको कहना है, राइट? सो जैसे हम लोगों ने उस दिन देखा था कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल, तो मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन स्किल किसी की एक्सीलेंट है, उसका क्या मतलब है? कि उसकी प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन ठीक है, उसकी वोकैबुलरी ठीक है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है, उसके जेस्चर्स ठीक है, ही और शी इज एबल टू मेंटेन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो अगर सब कुछ है तो ऐसे एक्सीलेंट दूंगी, अगर कुछ नहीं है तो पुअर दूंगी. जैसे जैसे एक एक दो दो घटते जाएंगे तो बीच वाले लेवल्स मेरे पास. सो डिस्क्रिप्शन इज गिवन. So rubrics are required a one way of bringing or enhancing objectivity in scoring. तो अभी जब हम असाइनमेंट देते हैं, बच्चे के टोटल मार्क्स लगा के दे देते हैं, एंड द पर्सन इज अंडर कि मुझे बी क्यों दिया, उसको ए क्यों दिया, या मुझे 9 नंबर दिए उसको 7 क्यों दिए, 7 वाला कहता मुझे 7 क्यों दिए, उसको 9 क्यों दिए. There are no definite answers with the teacher sometime. So what is needed is to generate satisfaction. Battery is running low. लगी तो हुई है, ऑन नहीं है. एक हाँ, right. So rubrics will able to enhance the objectivity in scoring and satisfy the learner, और specific feedback available हो जाती है to the learner which point he or she is lacking or the person can improve upon that. Case studies we have already discussed. They can be one method of assessment also. That at master's level, dissertation and thesis, dissertation or thesis, they can be used. And then
Dissertation and thesis भी क्या है? Problem solving है, right? Then presentations made by the learners in the class. You have already given me this other day. Viva voce. That can be to check the understanding of the subject course. Viva voce can be understanding of the problem and the rationale behind that, the methodology used to solve the problem, right? Viva voce तो तभी लेते हैं to check the cognitive aspect of the learner. अगर किया है, why this particular rationale for utilizing a particular method, a particular technique, a particular approach, rationale for observing the safety precautions, यही तो चेक करते हैं हम वाइवा वोसे से. The clarity of understanding of the learner. And then अब देखिए performance test. अब जब लैब एक्सपेरिमेंट आप कराते हो स्टूडेंट से इन द लैब, दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट. ठीक बात है. एंड दिस इज वेयर यू आर चेकिंग एप्लीकेशन एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर, बट एट द सेम टाइम उसकी टेक्निकल स्किल्स, ability to manipulate machinery, ability to handle the machinery, equipment, tools, ये भी तो चेक करते हैं. His observation and recording ability, his ability to analyze the observations which are made and draw conclusion, ये भी तो टेस्ट करते हैं, right? Then you see we can also use surveys. कहाँ यूज कर सकते हैं सर्वे को? हाँ, तो इसको स्टूडेंट परफॉर्मेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? इन असेसिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. Okay, to get the feedback from the student, to get the feedback from the employers of the students who have joined the world of work. तो उनके बारे में, whether they are able to perform at the workplace or not, what are the things which are lacking among them. So this will give us an idea what changes in the curriculum need to be made. We can take the teachers' feedback with respect to how they assess the student with respect to their motivation, interest, learning, etc. वो भी तो कर सकते हैं. Surveys can be taken up, and then interviews with the students, existing alumni, teachers, employers, उनके साथ interviews ले सकते हैं. And then we can also have focused group discussion. Few methods which I've enlisted which can be used. ठीक है. अब देखिए, ये जो अपने आपको ये कराया होगा मैम ने, these are all active learning strategies, है ना? डॉक्टर अमन मैम ने कराया होगा थिंक पेयर शेयर रिवर्सल क्वेश्चनिंग एंड ऑल. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. ओनली थिंग इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए all these techniques, which are techniques of providing instruction, techniques of engaging learners in the classroom, enhancing interaction among the learners and between the teacher and the learner, all these techniques can be used for assessment of students' performance. जब आपने think pair here करा, आपने क्वेश्चन पोज करा, स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली थिंक किया आंसर, देन यू अलाउड देम टू एक्सचेंज विद अनदर स्टूडेंट, पेयर कर दिया. आपको पता चल जाएगा कितनी क्लैरिटी है ऑफ द और द अंडरस्टैंडिंग व्हिच द स्टूडेंट हैज डेवलप्ड. सो दिस गिव्स यू एन आइडिया वेदर यू नीड टू सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन, यू नीड टू रिपीट द इंफॉर्मेशन और नॉट. तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए all these techniques can be used, right? Now the question comes in types of assessment. One of my colleagues said formative assessment. और क्या होती है? Summative. Any other idea? जी. So let me just assessment types. One of the types is formative assessment. That is also referred to as assessment for learning. For learning. हम assess क्यों कर रहे हैं? The major purpose is to improve upon the learning of the learner. Major purpose is not to grade or certify the student.
तो जितनी आप क्लासरूम में असेस करते हो बच्चे की परफॉर्मेंस थ्रू एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, थ्रू गिविंग क्विजेस, थ्रू गिविंग टास्क, न्यूमेरिकल्स, और जितना भी आप प्रैक्टिस टास्क देते हो, ऑल दैट इज एम टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द लर्निंग ऑफ द लर्नर. आप ग्रुप डिस्कशन करा लेते हो बच्चों में, दैट इज ऑल्सो एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड दैट कैन बी यूज. तो formative evaluation or formative assessment is any assessment which is carried out during the process of teaching learning. During the process, मैं क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ, मैं क्वेश्चन पोज करती हूँ, आप आंसर करते हो, दैट ऑल्सो गिव्स मी एन आइडिया. तो ये नंबर देने के लिए नहीं है, बट टू व्हाट एक्सटेंट, हाँ, बच्चे को कितना आता है, कितना उसने सीख लिया है, कहाँ पे उसकी डिफिकल्टी है, दैट वी ट्राई टू डिटरमिन, राइट. देन द सेकंड टाइप ऑफ असेसमेंट इज summative assessment. Now see the difference. That is carried out during the process. This is carried out at the end of the process. तो end means, अब देखिए, जो आप मिड टर्म टेस्ट लेते हैं, जो आप क्लास टेस्ट लेते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है? समेटिव असेसमेंट. आप एंड टर्म टेस्ट लेते हो, प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हो बच्चे का अंत में, वो क्या है? ऑल पार्ट ऑफ समेटिव. एंड द पर्पस हियर इज टू ग्रेड एंड सर्टिफाई द स्टूडेंट्स. is not to improve upon the learning but to grade and certify the students. ठीक है? तो this is also known as assessment of learning. बच्चे ने, even if when we go in for criterion based grading, और हम कहते हैं out of the 5, 3 learning outcomes, course outcomes have been attained. This is nothing but criterion based grading, part of summative assessment. Then another type of assessment is placement assessment. अब देखिए, मैं कहती हूँ before I start my course, I am taking the test of my learners कि उनको पहले से कितना आता है. How will it help me? Where the student need to be placed in the process of teaching. देखिए, when a school student gets migrated from one school to another, the new school always takes an admission test. वो कहता है भाई, अरे बच्चे 6वीं में का है, काबिल है, या 7वीं के काबिल है. सेम वे व्हेन अ स्टूडेंट, ये तो एक चीज है, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हो. व्हाई डू वी टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन? वेयर द स्टूडेंट नीड टू बी प्लेस्ड. हम यही तो देखते हैं ना कि आईआईटी के काबिल है, पॉलिटेक्निक के काबिल है, किसके, और फर्स्ट ईयर के काबिल है या सेकेंड ईयर के काबिल है. अभी देखिए, द पर्सन हु हैज डन डिप्लोमा, ही गेट्स अ लेटरल एंट्री टू द इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर. तो ये डिटरमिन किया गया ना कि 3 years डिप्लोमा इज एट पार विद द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. तो प्लेसमेंट ही हुई ना, जिसने कर लिया उसको हमने सेकेंड ईयर में प्लेस कर दिया. इसी तरह when we are working in an environment where online learning is gaining impetus, तो वहां पे क्या जरूरी हो जाता है? हम क्या करते हैं, 8 मॉड्यूल्स बना दी, ठीक है, सारे टीचर्स के लिए. अब हर मॉड्यूल में 8, 10, 11 टॉपिक है, ठीक है. हर टॉपिक के लिए अगर मैं प्री टेस्ट रखूं, आपने रजिस्टर किया, आप प्री टेस्ट लीजिए फॉर मॉड्यूल 1, जो टॉपिक 1. अगर आपके 90% से नंबर ज्यादा है, सो मैं कहती हूँ आप स्किप कर दो टॉपिक 1. यू कैन डायरेक्टली गो टू टॉपिक 2. आप टॉपिक 2 का प्री टेस्ट लीजिए. अगर आपके उसमें भी 90 से ज्यादा नंबर है, यू कैन स्किप इवन टॉपिक 2. तो जिस चीज की मास्टरी आपके पास है पहले से, उसको दोबारा क्यों कराऊं, दोबारा टाइम क्यों वेस्ट करूं? सो यू विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर. जिसको कुछ नहीं आता, वो मॉड्यूल टॉपिक 1 से शुरू करेगा. जिसको टॉपिक 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ही कैन स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम टॉपिक 4. तो प्रायर लर्निंग को आप रिकॉग्नाइज भी करते हो. सो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बिल्ट इन. सो प्लेसमेंट, assessment, and then there can be
डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अभी मैंने आपको बोला था कि एक बच्चा कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, तारे जमीन देखी थी ना, याद आ गया? उसमें उसकी प्रॉब्लम थी, द टीचर वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी, आमिर खान, एंड देन द प्रॉब्लम वॉज ही वॉज एबल टू टैकल इट। सो ऐसे हो सकता है हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्पेलिंग्स नहीं आते, वो ए यू वाला वॉवल्स वाला वो गलती करता है हमेशा। दिस इज अ स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम। देयर इज अ स्टूडेंट, उसका हाई अचीवर तो है, इंटेलिजेंस भी है, लेकिन स्लो लर्नर है। somebody needs to identify कि इसको सिर्फ टाइम की प्रॉब्लम है। इसको अगर ज्यादा टाइम दे दोगे तो एवरीबडी कैन लर्न। दिस इज द थियरी इन education that provided adequate time for learning, every student can excel। ठीक है, कोई 1 घंटे में सीखता है, कोई 4 घंटे में सीखता है, कोई 10 घंटे में उसी चीज को सीखता है, राइट? सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट विल हेल्प यू टू, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोज क्या होता है? आप, फीवर है मुझे, एक किसी और को भी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर तो सेम है, सिम्टम सेम है, cause identify the underlying cause which may differ। मेरे को बुखार है, रीजन कुड बी डिफरेंट, अदर पर्सन हैज अ फीवर, उसका रीजन अलग हो सकता है, रीजन मे नॉट बी सेम। सो मेडिकेशन विल डिपेंड अपॉन द रीजन ऑफ, ठीक बात है? सो इस यही है कि डायग्नोस्टिक मीन्स टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज फॉर ए पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जब आपने उसको कर लिया, यू आर एबल टू रेफर द स्टूडेंट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। खुद नहीं कर सकते सारी चीजों का इलाज, तो हो सकता है गाइडेंस वाले के पास भेजना पड़े, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़े, काउंसलिंग के लिए जाए, तो दे कैन बी डिफरेंट। सो दैट इज रेफर टू एज डायग्नोस्टिक, राइट? सो अब देखिए, सिंपली लुक एट, दीज आर द पर्पसेस सर्व्ड बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपने क्या करा? मॉनिटर करा बच्चे की प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई की, एंड उसको करेक्टिव फीडबैक दी सो दैट ही कैन इम्प्रूव अपॉन हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखिए समेटिव असेसमेंट, डेफिनेशन तो छोड़ दीजिए, रीडिंग, सर्टिफाइंग एंड डिटर्मिनिंग द कोर्स इफेक्टिव, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, और प्लेसमेंट का आपका जो पर्पस है वो देख लीजिए, 2 है कि बच्चे को पहले से कुछ आता है, प्री रिक्विजिट उसके पास अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी गो इन फॉर प्लेसमेंट। ठीक, देन डायग्नोस्टिक इज टू आइडेंटिफाई द कॉजेज फॉर डिफरेंट डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय लर्नर। ठीक, अब ये बोलो, एक अच्छी असेसमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? किस असेसमेंट को आप अच्छा बोलोगे? ओके, अगर हम अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं थ्रू इवैल्यूएशन तो हम उसको अच्छा बोलेंगे। और कुछ? ओके, तो वी आर एबल टू असेस द वैरायटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, तो उसको हम अच्छा बोलेंगे कि हमारे कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स को हम असेस करते हैं। और कुछ? गुड, और कुछ? अभी हम शुरू में बोल रहे थे डिफिकल्टीज, ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो क्या था? And we will also diagnose it and correct it. If we are able to make a betterment in his performance, then we can say that it is good. So that means we are able to utilize the results of assessment and improve upon the performance of the learning. उसको हम good assessment कहेंगे। और ये किसने बताया था? किस चीज पे था? राइटिंग टेस्ट आइटम्स। अच्छा, अभी कर रहा है, अभी आपने, वो पहले ही हो गया?
वो तो असेसमेंट के बाद आता होता है. अच्छा, एनीवे, ठीक है. तो उसमें आप तभी आप सब सप्लाई टाइप, सिलेक्शन टाइप सब बोल रहे थे. गुड 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 गुड. ओके, चलो अभी फाइन. और कुछ और कोई पर्पस बोलो. सो दोनों टाइप्स की हो, कि फॉर्मेटिव भी होए और सबमिटिव भी. ओके, उस पे भी होगा. फाइन. सो अब देखते हैं. इन नटशेल दीज आर 5, पर इसमें छठा आप ऐड कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी. द वेरी फर्स्ट थिंग वी लुक एट इज वैलिडिटी. वैलिडिटी क्या होती है? योर आइडियाज ऑन वैलिडिटी. जी, हम कहते हैं ना ये वैलिड है. हम कहते हैं एक फुट्टा लिया मैंने. कब बोलोगे कि ये फुट्टा वैलिड है फॉर द पर्पस इट हैज बीन क्रिएटेड? अब टॉपिक मैंने तो फुट्टा बोला, अब कहाँ पहुंच गए? फुट रूलर है, से फॉर एग्जांपल आई हैव अ फुट रूलर, राइट? कब कहेंगे कि ये वैलिड मेजर है ऑफ द लेंथ ऑफ समथिंग? प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. Whether the test measures what it intends to measure. जो आप चाहते हैं मेजर करना, अगर वही चीज वो मेजर कर रहा है, आपका जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी वैलिड. अगर मैं कहती हूँ मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे की मेजर करनी थी, और क्वेश्चन तो मैंने सारे डिफाइन डिफाइन स्टेट ओ कंपेयर डिफरेंशिएट एक्सप्लेन करके रख दिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कोई आया ही नहीं. तो क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को असेस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ. तो कहते हैं जो आपका फुट रूलर है, दैट इज मेजरिंग एग्जैक्टली 12 इंचेस. अगर वो 12 इंचेस मेजर करता है, देन इट इज वैलिड. अगर वो 10 इंच मेजर करता है या 12.5 करता है, तो दैट इज नॉट ए वैलिड टूल फॉर मेजरिंग द लेंथ. जैसे आप घड़ी लगाई हुई है बहुत लोगों ने, राइट? सो अभी क्या टाइम हुआ है? 12:25. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर 12:25 है और आपकी घड़ी 12:25 दे रही है, देन इट इज अ वैलिड मेजर. नींद आ रही है? तो अगर आपकी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, इज इट अ वैलिड मेजर? नो, इट इज नॉट वैलिड मेजर. It should give 12:25. सो वैलिडिटी, जब आपने कहा आप कोर्स है पढ़ा रहे, आपका पहला टेस्ट आया क्लास टेस्ट 1, आपने 3 टॉपिक कवर किए हैं सिलेबस में से. अगर तीनों टॉपिक कवर कर रहे हो, देन इट इज अ वैलिड मेजर. अगर आपने ये कह दिया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द 3 गिवन, और 3 क्वेश्चन 3 टॉपिक से है, बच्चा पहले ही 2 लर्न करके आएगा. वो पहला दूसरा टॉपिक कर सकता है, दूसरा तीसरा कर सकता है, सेकंड थर्ड और फर्स्ट कर सकता है ना? उसको चॉइस हो गई. सो ही विल नॉट लर्न ऑल द 3 टॉपिक्स, बट ही लर्न 2 टॉपिक्स एंड गेट. कितने नंबर आ सकते हैं? 80 से 85% नंबर बच्चा लेके जा सकता है अगर वो 50 to 60% ऑफ द सिलेबस वो सीख लेता है. ये कंक्लूजन है जो हमने ड्रॉ की, राइट? तो देखिए, वैलिड मेजर इज व्हेन ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड, व्हेन एक्सटर्नल चॉइसेस आर नॉट गिवन बट इंटरनल चॉइसेस आर बिल्ट इन. आप सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन देते हो, से मैं थ्योरीज पढ़ा रही हूँ, 2 थ्योरीज हैं पैरेलल, सो आई गिव और थ्योरी तो आई ना बच्चे को, एक आई, जो उसको आती है वो एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन वो आइटम सेम डिफिकल्टी की है, सेम टॉपिक से है, सेम लर्निंग आउटकम को असेस करिए. वैलिडिटी ऑल्सो मीन्स दैट जो टेस्ट आप बनाए उसमें उसकी रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग लेवल के क्वेश्चंस हों. ये नहीं कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग ये असेस करके हम छोड़ दें. ऑल 6 levels of learning. So there should be
proper weightage given to various types of learning outcomes. ठीक है? Then, validity also means that the intention of the paper setter must be clear to the learners. आप कंपेयर कहते हो, तो मैंने क्या बोला था? कंपेयर मीन्स पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो बच्चे को भी ये क्लियर होना चाहिए कि कंपेयर मीन्स पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. डिफरेंशिएट मीन्स ओनली द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस. आपने कहा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, तो आपने 5 पार्ट्स दिए, उन्हीं 5 पार्ट्स के फंक्शन बच्चा लिख रहा है. दैट इज ही हैज अंडरस्टूड द इंटेंशंस. डिटेल में जाएंगे व्हेन वी टेक अप पेपर सेटिंग. आज इतना ही करते हैं. देन द सेकंड थिंग इज रिलायबिलिटी. गुड. Okay, good one. Reliability refers to dependability. Can we depend upon the score we have assigned to the learner? अभी क्या होता है? 90-95 नंबर लेके आता है बच्चा 12वीं में. क्लास में आप बेसिक सवाल पूछते हो, नहीं आंसर करता है. 100 भी आते हैं. हम कहते हैं खाक सीखा इसने. That means the scores are not reflecting the actual knowledge which the student possesses. तो फिर असेसमेंट का फायदा क्या है? इसका मतलब आता कुछ नहीं है पर नंबर 100 है. अपने वर्ड्स में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता वो. इसका मतलब रेटिफिकेशन लगाई, जो कुछ आया रिप्रोड्यूस करके आ गया, अदरवाइज ही डजंट नो. तो जो तनु ने कहा कि इट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी. अगर सेम टेस्ट आप बच्चे को दोबारा दे देते हैं आफ्टर 1 month, there should not be drastic difference in the relative position of the learner. That means अगर वो बच्चा फर्स्ट आया है, he can slip to second or third or fourth position, but he cannot slip to 60th position in the class. तभी तो dependable है. Or you can other words say the correlation between the two sets of scores should be very high. तो हाई, जो अगर जिसके पहले हाई थे उसी के इसमें भी हाई है ना. ठीक है मैम. जैसे किसी ने क्या किया, रिटन टेस्ट हुआ और एक प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ. रिटन टेस्ट में जैसे मार्क्स उसके हाई है, वैसे उसके प्रैक्टिकल में हाई होना चाहिए. नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल. ये दो अलग चीजें आप बोल रहे हो. मैं कह रही हूँ सेम टेस्ट, सेम टेस्ट. आज मैंने आपको मल्टीपल चॉइस टेस्ट दे दिया 100 आइटम्स का. 15 दिन बाद या महीने बाद सेम टेस्ट रिपीट कर दिया. Then I'll see that your relative position should not vary significantly. थ्योरी में कोई बच्चा अच्छा हो सकता है जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं. प्रैक्टिकल में वो बच्चा अच्छा हो सकता है जिसका टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, तो वो परफॉर्म अच्छा करता है. तो ये जरूरी नहीं है जिसकी थ्योरी में परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी की प्रैक्टिकल में होगी. नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल. ठीक है. सो रिलायबिलिटी यहाँ पे देखिए, there can be inter-rater reliability, there can be intra-rater reliability. अब देखिए जो यूनिवर्सिटीज या बोर्ड री इवैल्यूएशन की प्रोसीजर देते हैं उसमें क्या होता है? अनदर एग्जामिनर इज सेट. फिर उनका देखा जाता है कि पहले एग्जामिनर से कितना वेरी करता है. एंड सम टाइम देयर इज ड्रास्टिक डिफरेंस इन द फर्स्ट असेसमेंट एंड द सेकेंड असेसमेंट. One classic example, one person gave 0 in numerical, another person gave 16 in numerical. ये हुआ है एक्चुअल इन सिविल इंजीनियरिंग. एक ने सिर्फ रिजल्ट देखा, 0 दे दिया. दूसरे बंदे ने स्टेप बाय स्टेप देखा एंड ही सेड I don't expect a civil engineer to enter into calculation correctly, but if he knows the procedure, आज तो कैलकुलेटर उसके पास है, कंप्यूटर उसके पास है, उसको तो फॉर्मूला लगाना है, लगा देने हैं. तो व्हाई शुड, अगर गलती कर भी गया तो 1 नंबर काट लो, 2 नंबर काट लो. व्हाट इज इट दैट यू कट ऑल द 4 मार्क्स, 16 नंबर उसके. न्यूमेरिकल में हमेशा इट शुड बी स्टेप वाइज. So
देयर कैन बी इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी ऑल्सो. इंट्रा मीन्स अगर मैं ही अपनी चेक की गई असाइनमेंट्स को नंबर छुपा दूं, दोबारा असेस करूं, unless and until I have a rubric, there are chances that the rating will vary. किसी को ए दिया था उसको सी भी दे सकती हूँ, बी भी दे सकती हूँ, ऐसा भी होता है खुद ही. तो मुझे ही क्राइटेरिया क्लियर नहीं है तो बच्चे तो फिर डिससेटिस्फाइड रहेंगे ना. सो द पर्पस इज गुड असेसमेंट इज डिपेंडेबल, both inter-rater reliability and other words intra-rater reliability. Then comes objectivity. Objectivity किस में होती है? स्कोरिंग में. तो ऑब्जेक्टिविटी जितनी आप ला सकते हैं, सो कहते हैं सिलेक्शन टाइप आइटम्स आर मोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एज कंपेयर टू सप्लाई टाइप क्वेश्चंस. बिकॉज अगर मैं करूं या मशीन करे स्कोरिंग, 1-0 will remain 1-0, right answer 1, wrong answer 0. Anybody can do. But then you have to look into the guessing also. True false में 50% of the chances are there कि guessing करेगा बच्चा. मुझे नहीं भी आता, 50% है ना, ट्रू लिख दूं या फॉल्स लिख दूं. मल्टीपल चॉइस लिखूं तो 25% गेसिंग के चांसेस हैं. सो आई नीड टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ गेसिंग. नेगेटिव मार्किंग इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है. तो नेगेटिव मार्किंग हमने शुरू कर ली टू अवॉइड गेसेस, ठीक है. दैट इज वन वे ऑफ एनहांसिंग ऑब्जेक्टिविटी. देन कम्स प्रैक्टिकलिटी. तो ऑब्जेक्टिविटी में जो हम कह रहे थे रूब्रिक, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हर चीज के लिए, असेसमेंट के लिए, सप्लाई टाइप क्वेश्चंस के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, टीम वर्क के लिए आप रूब्रिक डेवलप कर सकते हैं. देन कम्स प्रैक्टिकलिटी. क्या मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी? जी, क्या क्या मीनिंग होता है प्रैक्टिकलिटी? जो भी आप प्लान कर रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर, वेदर यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट. अब देखिए, मैं कहती हूँ मैं तो हर बच्चे का जी हर एक्सपेरिमेंट के साथ वाइवा वो से लूंगी और एंड में लूंगी. कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स का एक्सपेरिमेंट, 3 घंटे मुझे चाहिए फिर टू टेक द वाइवा से. इट्स नॉट फिजिबल. When the students are performing the experiment, I can go from one student to another, another. उन्हीं 3 घंटे में सारे बच्चों का वाइवा ले सकती हूँ. So why do I take a chair and sit in a corner of a lab? Why can't I move and take the viva voce of my learner? Visible है. आप कहते हो सिचुएशनल टेस्ट में हर रोज करूंगी, नहीं हो सकता. It's not feasible. Situational test, at the most you can have 4-5 situational tests in a semester, but you cannot have situational test every day because it requires time, it requires resources, it requires effort. नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो क्लास में अगर जैसे एक टीचर ने बोला मेरे 80 स्टूडेंट है, 80 से सेमिनार कराती हूँ. भाई 80 दिन तुम क्या करती हो फिर? कुछ नहीं. तो बच्चे ही देते हैं ना सेमिनार. नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स दैट इज नॉट फिजिबल. फिजिबल क्या? उसमें आप रिटन टेस्ट दे सकते हो, असाइनमेंट्स दे सकते हो. रादर देन गिविंग इंडिविजुअल वर्क, यू कैन ग्रुप देम. तो ग्रुप टास्क दीजिए, उसमें आप उसको फीडबैक दीजिए. दैट इज फिजिबल. मैंने 150 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया तो मेरे पास 15 ही ग्रुप हो गए ना. बट लेकिन वो ग्रुप कैसे वर्क करेगा? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ दैट. 10 मिनट्स भी अगर आप कह रहे हो तो 10 के 10 बच्चे इन्वॉल्व होंगे. एंड दैट वाज अ ट्रीट. जब ये अवार्ड देते हैं ना AICT फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉलेज इन कम्युनिटी, देयर वाज अ स्टूडेंट टीम और उन्होंने हर मेंबर ने 2-2 मिनट बोला. It was a wonderful presentation made by the students.
तो ऐसा कुछ जहाँ पे एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, तो आप हर बच्चे की कंट्रीब्यूशन को जांच सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी, ये जो नेक्स्ट है यूटिलिटी विच माय फ्रेंड सेड हियर, कि अगर आप कोई असेसमेंट करते हैं, उसको ग्रेड देके छोड़ देते हैं, आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, it doesn't serve the purpose unless and until you identify the strengths and weaknesses in the assessment method. बच्चे ने असाइनमेंट दी, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जयपुर में द स्टूडेंट्स ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग, उन्होंने डिजाइन बनाए हुए थे, somebody got A, कोई किसी का B, तो मैंने पूछा बेटा आपको ये दो डिजाइन आपने ही बनाए हैं डिफरेंट, एक में ए मिला एक में बी मिला, क्यों, क्या डिफरेंस है? कहते टीचर को वो ज्यादा पसंद आया इसलिए ए दे दिया, टीचर को ये ज्यादा पसंद नहीं आया तो बी दे दिया। मैंने कहा नो, specific reasons should be given, only then the student will be able to improve upon, कि इसमें उसके डिजाइन में whether the proportion was wrong, whether the color combination was wrong, whether the labeling was wrong, whether the जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए हैं वो गलत हो गए, क्या गलत हो गया जिसमें टीचर ने आपको, या वेरी ट्रेडिशनल रेपिटेटिव डिजाइन हैज बीन यूज्ड और नथिंग इनोवेटिव हैज कम आउट ऑफ, क्या रीजन है बताओ तो सही, बताओगे तो बच्चा इंप्रूव करेगा। यूटिलिटी, यूटिलिटी तो हर चीज की यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप इवन जब एंड टर्म एग्जामिनेशन देते हैं तो आपने देखा होगा हमारे डिप्लोमा का ये प्रॉब्लम है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत बच्चे फेल होते हैं, है ना। ये सदियों से, ये मैं 86 आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, तब से सुन रही हूँ, बट व्हाट हैज बीन डन? क्या अप्लाइड मैथ्स के पढ़ाने में चेंज आई? क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर में चेंज आई? क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स के करिकुलम में चेंज आई? आई हैव माई ओन डाउट्स। तो हमने यूज क्या किया, इतनी स्टडीज करी है, एनालिसिस ऑफ फेल्यूर इन अप्लाइड साइंसेस, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। फायदा तो तब होता ना जब हम ये सारा कुछ देख के एंड वी हैड टेकन द करेक्टिव। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो one reason we could identify it was कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो टीचर पढ़, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आई एम नॉट सेइंग कि वो होना नहीं चाहिए, बट आई एम सेइंग कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो हम मैथमेटिक्स की तरह ही पढ़ा लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में वो कैसे यूज हो रहा है, सिविल में वो कैसे यूज हो रहा है, मैकेनिकल में वो चीजें कहाँ यूज हो रही हैं, तभी तो अप्लाइड बनेगा ना। सो इट इज अ टीम टीचिंग विच शुड गो। एक इलेक्ट्रिकल का बंदा, एक मैथमेटिक्स, दोनों, मैं मैथ्स का फॉर्मूला सारा पढ़ा देती हूँ, सब बता देती हूँ। अ टीचर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेन्स एग्जाम्पल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल वाला मैकेनिकल, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते। ये हमने सोचा नहीं है, हम कहते हैं भाई तुम ही सीखो अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तुम ही सीखो मैकेनिकल। भाई हर किसी की अपनी स्पेशलाइजेशन है, जस्ट जितनी एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वाला दे पाएगा शायद मैं प्योर मैथमेटिक्स से नहीं दे पाऊंगा। सो दैट वन शुड अप्लाइड, वो होना चाहिए। एंड बिलीव मी, प्रोफेसर भट्टाचार्य's बुक ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो किताब बहुत चल रही, क्योंकि उन्होंने सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स कहाँ अप्लाई होएगा वो सारा एक्सप्लेन किया। यूटिलिटी, है ना। तो आप असेसमेंट को करिकुलम बनाने में यूज कर सकते हैं, असेसमेंट को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बदलने में आप यूज कर सकते हैं। मे बी आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई पोज्ड अ क्वेश्चन, आपका रिप्लाई नहीं आया, नाउ दिस इज गिविंग मी अ फीडबैक, आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, आई नीड टू गिव मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैं अपनी मेथोडोलॉजी में चेंज लाती हूँ, मैं ग्रुप डिस्कशन कराती हूँ बच्चों की, पढ़ के आना जी, पढ़ के कोई आता ही नहीं। इमीडिएटली एज अ टीचर यू टेक अ डिसीजन कि आप उसको टेक्निक बदलते, ठीक है ना। तो आप असेस कर रहे हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तभी तो टेक्निक बदल देते हैं। यू से ओके
leave it. Let me first give you the orientation to the topic and then we'll go for further discussion. टीचर की तो ब्यूटी ये है ना, फ्लेक्सिबिलिटी. I think somewhere education system has become much more lenient. मेरी ये भावना है. I don't know what is your feeling, but कहीं ना कहीं हम हमेशा compromise कर लेते हैं with the rules and regulation, which is not correct. बच्चा इंटरनल असेसमेंट देता ही नहीं है, हम उसको फिर भी इंटरनल असेसमेंट में मिनिमम मार्क्स देके क्यों दे रहे हैं? असाइनमेंट दी नहीं है तो पास कैसे हो गया इंटरनल असेसमेंट में? रिटन टेस्ट दिया नहीं है फिर भी वो आगे जा रहा है. अटेंडेंस की कंडीशन है 75%, उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होना चाहिए. दिस इज माय ओन पर्सनल व्यू. आई डोंट से, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वी हैव मेड कॉम्प्रोमाइज. हमें 75% कराना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में यहाँ पे बच्चा एडमिशन नहीं लेगा. तो देखो फिर गलत है ना, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर देयर, उनमें भी अच्छे हैं उनमें भी बुरे. ये नहीं है दोनों में ही अच्छा बुरा, दोनों में ही है. बिकॉज पढ़ा तो हम सभी रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. बट कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो स्टूडेंट वुड ऑलवेज प्रेफर. ऐसा भी नहीं है कि सब इजी वाले में जाते हैं. एक अच्छा डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूट में भी लोग जाते हैं बिकॉज द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी बेटर, द लर्निंग इज गोइंग टू बी बेटर, द प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी बेटर. तो बच्चे सिर्फ ये नहीं देखते कि कहाँ पे वो हमें ज्यादा मिलेगा, छूट मिलेगी. कुछ ऐसा होता है जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, डिप्लोमा भी कर रहे हैं, मे बी pursuing more than one also, that is available. गलत है ना? तो अगर स्कूल में आप 100% अटेंडेंस देते हैं तो कॉलेज में कैसे लिबर्टी मांग रहे हैं? the senior level you go, you are more accountable. पर होता नहीं है ऐसा, उल्टा हो रहा है. बच्चे को तो हम स्कूल रोज भेजते हैं, जा भाई जाना है जरूरी, तो कॉलेज में आके क्या होता है, छोड़ दिया. कहाँ जा रहा है बच्चा पता ही नहीं घर वालों को. इवन द पेरेंट्स डू नॉट नो कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है या बाहर सैर कर रहा है. वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय द लाइफ, पर रोज तो नहीं हो सकता ना. बट होता है. मेनी स्टूडेंट्स कम फ्रॉम होम, डजंट रीच कॉलेज प्रीमिसेस. ऐसा होता है. हमारे सामने ग्राउंड में बैठे रहते हैं, हम नहीं कुछ करते हैं एज टीचर. बैठा तो बैठा. वी डोंट गो एंड कॉल दैट स्टूडेंट की चल भाई क्लास में. है ऐसा? कहते हैं चलो, आई एम हैप्पी इफ यू गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स. गुड. सो another one जो आप ऐड कर सकते हैं, that is transparency. कि assessment should be transparent. मैं कैसे आपको assess करने जा रही हूँ, ये क्राइटेरिया कितना एक्सटर्नल है, कितना इंटरनल है, कितना हम continuous assessment में क्या क्या करेंगे, everything should be in black and white and given to the learner. Rubrics should be prepared and handed over to the learner. Rubrics में, in designing a rubric, even the students can be involved. बच्चों को आप सिखाते हैं, so even they can be involved. And assessment need not be restricted to only teachers. किसी किसी aspect में peer assessment भी आपको लागू करनी है, self assessment भी लागू करनी है. So when you have rubrics, you can think of adding a tinge of peer. अब देखिए, जब आप कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, एज अ टीचर मैं हर ग्रुप के साथ तो पूरा टाइम नहीं ना रह सकती. विद वन ग्रुप ओनली आई कैन स्पेंड द होल टाइम. आई कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मेंबर्स. लेकिन जो मेंबर्स हैं, दे कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ अदर मेंबर्स. प्रोजेक्ट वर्क में भी ऐसा है, इट्स अ टीम वर्क. So students can assess the contribution done by other members better.
अब जब आप कहते हैं मेरी पर्सनालिटी है, तो सेल्फ असेसमेंट ही तो होएगी ना, दूसरा थोड़ी मेरे बारे ओपिनियन देगा। मैं ज्यादा अपने आप को अच्छा जानती हूँ, अपने बारे में समझती हूँ। अदर्स कैन ऑल्सो गिव, बट सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो असेंशियल। ठीक है, तो कहने का भाव है असेसमेंट के लिए नॉट ओनली टीचर बट peer members and self assessment procedures can also be integrated. I stop here.